class 12th, we are focusing on one more property of D block element. As you know, we were doing the different characteristics of D block elements. Now I am focusing on the last topic of D block element, that is ionization enthalpy or ionization energy. We'll see that how the this thing D block elements ionization enthalpies varies in different ways. So let's talk about the first idea, that if you remember your periodic table, you know this is the S block elements and you have D over here and P comes over here, na? A general idea I am telling you. So the ionization enthalpy of D block elements are lying between the ionization enthalpies of S and P block elements. You know, na, D's are present in between of S and P's. So their ionization energy is also lying between S block elements as well as P block elements. Now we'll focus how it's there, how they behave. So D block elements ionization enthalpy is higher than S block elements, but it is less than P block, क्योंकि उससे छोटे है ना. तो इससे देखो यहीं से दिखेगा, पहले S है फिर D है P, तो D से मतलब D जो है S से ज़्यादा रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी पर और P से कम रहेगा, because it's coming in the between part. So I am just, after this I am just showing you about the graph which is just giving you a various ionization enthalpies of first, second and third series of ionization, this transition series, right? So we will focus the this thing ionization enthalpy, the first ionization enthalpies of all the three series, the first series, the second series and third series of basically the transition series, means we are talking about the 3D, 4D and 5D. Now let's see the graph. Now you can see the graph that has been there for the first ionization enthalpy of transition elements of the first series, second series and the third series. Now by the elements you must be familiar now, which are coming in the first series, this they are coming in the first series, they are coming in the second series, ये third transition series है ना, ये first transition series, ये second transition series, ये third transition series. और basically ग्राफ किसको represent कर रहा है, the first ionization enthalpies of transition elements. तो आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन है. अब इसको हम देखेंगे अलग अलग पॉइंट्स के फॉर्म में. यू कैन सी द ग्राफ, हाउ द ग्राफ इज़ बीन मेड. तो यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और यहाँ फर्स्ट आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया रखा है के जूल पर मोल पर, ठीक है. तो डिफरेंट एलिमेंट्स की वैल्यूज़ हैं. Now children, we are again seeing it in a theoretical form, in a detailed form, that ionization enthalpy of transition metals are quite high and lie between those of S block and P block elements. So let's talk about it, that how it has been there, that their ionization enthalpies are more and they lie between S block elements and the P block elements. Now I have shown you where they are lying. Now let's talk about the few things, that the first focus thing, you have to focus on the atomic radii, and second is your nuclear charge, right? Because these two factors are very important when you always focus your ionization enthalpy, then come your shielding effect also. So over here we'll focus upon it, that atomic radii and the nuclear charge of transition elements also lie, they also of transition elements lies between S block and your, this also lie between S block and P block elements, ठीक है. क्योंकि ये दो फैक्टर्स को ही हमें पहले फोकस करके चलना है. नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस. तुम क्या लगता है तुम्हें कि इनका एटॉमिक रेडियाई कैसा होना चाहिए? सीधी बात है, देखो यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक आइडिया ले लो, यहाँ पे डी ब्लॉक आ रहा है और यहाँ पे पी ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, और ये बीच में आ रहे हैं. तो आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब आप पीरियड के फॉर्म में मूव कर रहे हैं. तो कॉमन सेंस है कि जब पीरियड्स में आप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है. तो आपको यहीं से एक आइडिया मिलेगा, दे पोजेस स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई और न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा होगा, एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज किससे ज़्यादा रहेगा? एस से ज़्यादा, ठीक है ना. किससे रहेगा? देखो मैंने अभी तुम्हें बताया, ये एस हैं, ये डी हैं, ये पी हैं, ये बीच में आ रहे हैं दोनों के ना, एस और पी के बीच में आते हैं. तो अगर आप पहले, क्योंकि आपको दोनों से कंपेयर करना, एस से कंपेयर करेंगे तो उससे
कम आपका एटॉमिक साइज़ है, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है व्हेन यू कंपेयर इट विद द एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक में करें, बट इफ़ यू कंपेयर विथ पी ब्लॉक एलिमेंट तो क्या होगा, एटॉमिक साइज मोर, है ना, एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, पी ब्लॉक के एटॉमिक साइज और कम होगा, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इज़ लेस। ठीक है, कुछ भी बोल दो या इट इज़ रिवर्स कह दो, फिर इतना लिखने से अच्छा है। मैंने तुम्हें एक आइडिया बता दिया इस क्वेश्चन को याद करने का। यहाँ से देखो 2 पॉइंट्स पकड़ना, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज। जब आप पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज आपका कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो डी ब्लॉक और एस ब्लॉक को कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक साइज डी ब्लॉक का कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अगर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में कंपेरिजन करेंगे तो एटॉमिक साइज जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कम होगा और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी इनका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। तो दैट्स वाई आयनाइजेशन enthalpy lies between those of S block and P block. ठीक है, ये समझ में आई बात। Now children will focus on the next thing. First, ionization enthalpy increases with increase in atomic number across a given transition series, although it is not very regular. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात, व्हेन एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, योर एटॉमिक नंबर इंक्रीज, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, ये दोनों चीज़ें हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि द एडेड इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड, जो इलेक्ट्रॉन जो एंटर्ड करेगा, एटॉमिक नंबर जो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो कहीं एंटर करेगा, सो एडेड इलेक्ट्रॉन enter into n-1 d सबशेल, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो भी एडअप होगा वो n-1 d सबशेल पे होता है, तभी तो हम देते हैं ना 3d 4d 5d 6d सीरीज हम चलाते हैं। तो जो अपकमिंग एंटर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ये इसमें 3d पे आएगा, 4d पे आएगा, 5d पे, जैसी जो सीरीज़ अवेलेबल होगी, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सारे ट्रांजिशन सीरीज़ की जिसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जो बेसिकली क्या है कि आपका जो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आता है, वो n-1 d सबशेल पे एंटर्ड होता है। और ये जो n-d सबशेल होता है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको वो क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है। बिकॉज नाउ व्हेन द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज, यू नो न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रॉन दैट इज बीन एंटरिंग इज एंटर्ड इन n-1 d सबशेल and it's basically it shields your वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही चीज़ हमने देखी थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तुम्हें मालूम है ना कि न्यूक्लियस जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता रहता है, ठीक है। अब सपोज़ करो ये वाला आपका n-1 d, ये वाला सॉरी ये जो है n-1 d सबशेल है, तो यहाँ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके ns में लगे होंगे ना, ns सबशेल में होंगे। तो अब ये कंडीशन है कि भाई ये बेसिकली ये जो n-1 d है तो ये प्रोटेक्ट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भाई न्यूक्लियस क्या है हमेशा है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, पुल करता रहता है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये जो पुल होता है ये डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आपका ये भी याद रखना है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होता है जो कि इज अपोज्ड by the
स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि वो जो भाई न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, वो बेसिकली जो स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट को क्या करता है, वो हमेशा अपोज करता है। तो इसीलिए आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी जब आप एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे। और ये जो इंक्रीज़ होता है ये बहुत रेगुलर नहीं होता, स्लो प्रोसेस में होता है। ये नहीं कि इंक्रीज़ हो गया तो इंक्रीज़ हो गया, नहीं, स्लो प्रोसेस में होता है और बहुत रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। जैसे जो फर्स्ट आयनाइजेशन थे, हमने ग्राफ में भी देखा था, हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज बनाई थी, फर्स्ट सीरीज़ की, सेकंड सीरीज़ की और थर्ड सीरीज़ की। और ग्राफ के हिसाब से जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ थी उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो ज़्यादा थी कंपैरिजन टू योर फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज़, ठीक है। ठीक, आई एम अगेन शोइंग यू, आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस ग्राफ, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट आयनाइजेशन सीरीज़ और सेकेंड आयनाइजेशन सीरीज़ को देखते हैं, थर्ड आयनाइजेशन सीरीज़ हैं ये तीनों, सॉरी फर्स्ट आयनाइजेशन सीरीज़ के ग्राफ, लेकिन ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। तो यू कैन सी द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो क्यों है, दैट वी हैव टू फोकस। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। अपने क्वेश्चन उस पर हम जाएंगे कि हम लोग का ऐसा क्यों हुआ, वाई इट्स हैपन दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाज मोर। द पॉइंट इज दैट इफ यू सी द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, so in the third transition in this third transition series, that the atom of the elements have filled 4f orbital। इसमें क्या होता है, 4f orbitals जो होते हैं वो filled होते हैं आपके, ठीक है। और 4f ऑर्बिटल्स की खासियत होती है ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। मींस 4f ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगे और ये भाई तुम्हें मालूम भी है 4 का कैसा शेप होता है, क्या चीज़ होती है। तो ये बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स एंड दे डेवलप्ड अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द काउंट वॉट टाइप ऑफ शेप्स दे हैव। सो वॉट हैपन, जो अब जैसे सपोज करो यहाँ पे आपका लास्ट में NS है, NS2 लगा हुआ है और ये 4f फिर हम कह रहे हैं 4f में अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4f ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। 4f ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली शील्डिंग इफेक्ट डेवलप नहीं करते, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट डेवलप करते हैं। तो अब क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट होने से वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है जिस एक्सटेंट से वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अपनी तरफ पुल कर रहा होता है, अगर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो वो कम हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है खुद ही बहुत पुअर है, ज़्यादा एक्सटेंट से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन में जो ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ये ज़्यादा लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा लगेगा, ग्रेटर लगेगा। तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो यू हैव टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी so that the particular electron can move out from the valence orbit, ठीक है। मीन्स हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल से बाहर निकल सकें, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई, इसलिए क्या हो जाता है जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा लगती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम अगेन टेलिंग यू दैट ओवर हियर इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 4f ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। अब 4f ऑर्बिटल्स की खासियत क्या होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट डेवलप करते हैं, ये बहुत स्ट्रांगली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। अब न्यूक्लियस क्या हो गया, पावरफुल हो गया, न्यूक्लियस का जो पुल हो गया, अट्रैक्शन पुल हो गया वो ज़्यादा लग गया। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और उन्हें अट्रैक्ट करके अपने तरफ लेके आएगा, है ना। बिकॉज दिस इज़ वेरी पुअरली शील्डेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ 4f। तो अब बेसिकली क्या हो गया, अब इस जगह पे तुम्हें अगर चाहते हो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तुम बाहर निकाल सको तो यू हैव टू अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दैट्स वाई over here the ionization energy, the first ionization is higher if you compare it with with the first transition series or with the second transition series. Are you getting my point?
So till here we have completed the D block elements, their characteristics, their properties, general idea, electronic configurations. I have covered each and every topic that is coming in your reduced syllabus, right? So please focus this topic in this D block में. फिर मैं कह रही हूँ, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वाले पे ज़रूर फोकस करिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर पे ज़रूर या ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज़रूर फोकस करिएगा, और कलर कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे, और आयनिक रेडिया है और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इनमें मतलब क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं, एवरी ईयर है कि इन टॉपिक में से कोई एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, रीजनिंग में आते हैं, है ना। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस टॉपिक्स।